Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I am Shubhra and I am a life science educator. So here we are discussing some amazing facts. So fact for today is it is about liver. Okay. So before we go to the fact, let me discuss some basic things. See, our body is having a lot of organs. Especially हम उन सारे organs के बारे में जानते हैं क्योंकि कुछ particular function से associated हैं. Like if we talk about digestion, so if I ask you question related to stomach, then you all will be able to answer that it is related to digestion. It is the main center related to digestion. In the same way, if I ask about respiration, so you all know it is lung. Okay, these are lungs. So intestine की अगर मैं बात करूँ, so you all can answer absorption, digestion. Okay, kidney is associated with excretion. बट हियर मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि व्हाट ऑर्गन इज परफॉर्मिंग व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन, बट हियर सी आप किसी भी ऑर्गन की बात करिए, लाइक इफ इट इज़ हार्ट, इफ वी कंसिडर हार्ट, सो इट इज़ related to circulation, blood circulation. It is related to blood. You can all answer this, right? And the most important thing that you need to understand कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है related to blood और heart, so these organs are very symptomatic, right? आपकी बॉडी में if there will be any problem related to heart, you'll start getting symptoms. In the same way, if you get any a problem related to respiration in terms of sneezing, coughing, and many more symptoms are there related to cough and cold. So it is related to lungs and associated organs of lungs. Exactly. So मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी organs हैं, like stomach, if you have any problem in your stomach, you will get symptoms, right? So ये सारे organs, most of these organs start giving you symptoms in case of any issue. कुछ भी problem अगर उनमें हो रही होती है, if there is any malfunctioning or something wrong is there with them, with these organs, so they give symptoms ताकि आप समझ पाएँ कि something is wrong. बट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि चुपचाप साइलेंटली अपना काम करते रहता है एंड इट गिव्स नो सिम्टम्स. ओके, एंड हमें कुछ सिम्टम नहीं मिलता अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है, अनटिल एंड अनलेस द पॉइंट रीचेज वेयर थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स. इतना बुरा सिचुएशन हो चुकी होती है जब आपको सिम्टम मालूम पड़ता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल चुकी होती हैं. सो इट इज़ लीवर. ओके, आप पावर प्लांट समझते हैं, आई होप आप समझते होंगे कि व्हाट इज़ पावर प्लांट. सी, आपकी डेली लाइफ में आज की डेट में हम इतना डिपेंडेंट हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जस्ट इमेजिन अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो कंसिडर योर मोबाइल्स. जस्ट इमेजिन योर मोबाइल्स आर नॉट चार्ज्ड, एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग प्लेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा. And nothing, no fan, no light, no appliances, nothing. So can you imagine a perfect day or even a day without electricity? Of course not, na. So this is the role of our power plant, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में और आपकी लाइफ जिसकी वजह से नॉर्मली चल रही है. सो लिवर इज़ द पावर प्लांट ऑफ आवर बॉडी इन रियलिटी. क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? सी, जब भी आप किसी ऑर्गन की बात करते हो तो देयर विल बी अ पर्टिकुलर kind of function that is being performed by that organ. बट हम जब लिवर की बात करते हैं ना, सो लिवर इज़ परफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शन जिसको आप एसोसिएट ही नहीं कर सकते कि इट इज़ बाउंड टू अ पर्टिकुलर सिस्टम. मोर देन 500 अगर हम डिटेल में बात करेंगे लिवर के फंक्शंस की, तो इट इज़ परफॉर्मिंग मोर देन 500. एंड अगर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फंक्शन लेके चलें तो इट इज़ इवन मोर देन 100 फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म बाय लिवर. ओके, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ बताऊँगी so that you may be aware कि we need to take care of our liver. आपको मालूम पड़ना चाहिए कि जिस ऑर्गन को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, that is the most important part of our body. That is the thing that I want to discuss here. कि हम हार्ट के लिए बड़े कंसर्न हैं. एक्चुअली हम कंसर्न तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं है. वी आर ऑल कंसर्न अबाउट आवर एक्सटर्नल ब्यूटी, whether we are male or female.
males are concerned about their physique and females are concerned about their external beauty. So this is not the thing, yeah. If you really want to be fit, if you really want to look beautiful, the most important thing that you should consider, you should think about your internal fitness. आपके organs proper work कर रहे हैं, if your body is working in the right way that like it is supposed to be, so of course आप सुंदर ही दिखोगे. खूबसूरत दिखना is not all about fairness or having sharp features. It is about being fit in all the aspects. Okay, so let's start with the topic. मैं आपको quickly बताऊँ what is there in the box today. So liver is miraculous organ. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? See, सबसे पहली चीज़ देखते हैं. First, just give me a second. Okay. इट इज़ फाइन. सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन देखिए. अगर आप डाइजेशन को लेकर चलते हो, सी कुछ भी आप ले रहे हो फूड में, एनीथिंग, कुछ ना कुछ अमाउंट फैट का आपकी बॉडी में जाएगा ही, राइट. ऑयल, बटर, चीज़, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, तो जो भी अमाउंट फैट का आपकी बॉडी में जाता है, दैट will be digested with the help of a bile secretion. Bile, B-I-L-E, bile secretion. Bile के बिना that fat cannot be digested in your body. So bile secretion कहाँ से होता है? Bile is secreted by your liver. Bile secrete करना is a function of liver, but it stores in gallbladder. ध्यान रखिएगा, bile secrete तो liver करता है, but it stores in gallbladder. Okay. अब bile का रोल क्या है? आपके कपड़ों में कोई स्टेन लग जाए, तेल घी गिर जाए, चीज़ बटर कुछ भी, सो यू कैन नॉट वॉश इट विद वाटर ओनली, राइट. सो यू नीड डिटर्जेंट फॉर दैट. सो इन द सेम वे बाइल इज लाइक अ डिटर्जेंट इन योर बॉडी. सो जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम बाइल का होता है. ठीक, ये पहला रोल हुआ कि फैट इज बीइंग डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लिवर, बिकॉज लिवर इज सिक्रीटिंग बाइल, देन दैट बाइल विल बी secreted out of intestine, and वहाँ पर जाके आपका सारा fat will be broken out, and वो liver fat molecules, lipid molecules will be absorbed further. Second, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे टॉक्सिन्स लेते हैं अपनी बॉडी में. आप चाय भी पी रहे हो तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स आर बीइंग एंटर इन योर बॉडी, राइट. अल्कोहल इज द बिगेस्ट टॉक्सिन जो कि आप लेते हो अपने ब्लड में. एक्सक्यूज मी. सो लिवर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जितने भी ब्लड में टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, उन सबको बाहर निकालने का काम लिवर करता है. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, आई नीड टू. सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिवर ओनली कि ये ब्लड को डिटॉक्सीफाई करेगा, सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा. If it does not perform this particular function, what will happen? Your blood will be having a number of toxic materials and your body will be, you will die ultimately. हम हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रख सकते. It will be finished. Third, जब हम जो भी फूड हम लेते हैं, आपको पता होगा कि आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आई नो, इतना तो सबको मालूम होता है. सो ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या फिर आप अपने फिटनेस पर्सपेक्टिव से डाइट कर रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दोज फास्टिंग पीरियड्स आपकी मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर. सो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? फैट डाइजेस्ट हो रहा है. सेकेंड फंक्शन क्या हुआ? इट डिटॉक्सीफाइंग, इट इज़ डिटॉक्सीफाइंग ब्लड, सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है. थर्ड, इट इज़ गिविंग एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड. दिस इट रिलीजेज एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स एट द टाइम ऑफ लॉन्ग फास्टिंग. नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. आपको पता होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दीज आर ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन. सो ये सारे विटामिन आपके लिवर में स्टोर होते हैं, बिकॉज लिवर ही है जो फैट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज, राइट.
यही रीज़न है कि जब भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज 4 विटामिन, यू विल गेट नो सिम्टम्स इनिशियली, बिकॉज मैंने बोला आपको कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक है, ये छोटे मोटी चीज़ें बताता ही नहीं है, इट गिव्स नो सिम्टम्स। सो ये जब भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी डिटेक्ट होगी तो वो उस पॉइंट पर होगी जबकि आप सीवियरली डेफिशिएंट हो चुके होगे। तो विटामिन ए, डी, ई, के, these 4 vitamins are stored in your liver only. Then fourth point, it produces clot. Yes, last lecture में मैंने आपको बताया था platelets के बारे में, right? So platelets को proper function करने के लिए so many factors like proteins are required for clotting process. So these clotting factors कुछ enzymes होते हैं, कुछ proteins होते हैं, तो ये liver produce करता है। Finally, see, आपकी body no matter कितना प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, हाउ प्रॉपर एक्सक्रीशन इज बीइंग डन, रेस्पिरेशन आप कितना प्योर एयर में कर रहे हो, जब तक अनटिल एंड अनलेस योर डिफेंस सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली आप कुछ नहीं हो। एड्स में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एड्स? इन केस ऑफ एड्स HIV वायरस क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इट इज़ नॉट अ डिजीज, एड्स इज नॉट अ डिजीज, एड्स सिर्फ इतना करता है कि इट सप्रेसेस योर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद व्हाट हैपन्स, कुछ भी सी मैं यहाँ बैठी हूँ, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी अराउंड मी, विल मस्ट बी, ऑफकोर्स यार मैं वैक्यूम में तो नहीं बैठी हूँ, आई एम नॉट इन अ स्टरलाइज्ड रूम, बट हमारा डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि आर बॉडी सेल्स कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से जर्म्स, ठीक है। सो how fit you are, it depends on the defense system of your body, कि कितना competent आपका defense system है, right? So liver में एक particular cells होती हैं जिनको हम कफर cells बोलते हैं, these are the immune cells जो कि fight करती हैं germs से जो आपके blood में enter करते हैं। phagocytic cells हैं, engulf कर लेती हैं, कोई germ आएगा उसको खा जाएंगी, then उसको digest कर देंगी and excrete out कर देंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि इतने सारे सिम्टम्स, डाइजेशन, देन एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, फिल्टर्स आउट टॉक्सिन, तो इट इज एक्सक्रीशन, देन एनर्जी स्टोरेज जो भी है उसको निकाल कर आपको एनर्जी दे रहा है, विटामिन स्टोर कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपके इम्यून सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट एल्स डू यू वांट, इससे ज़्यादा क्या करेगा? और सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक पावर है लिवर की, इतना काम करने के बाद भी बेचारा कोई सिम्टम नहीं देता आपको, शांति से आपके सारे अत्याचार बर्दाश्त करता रहता है। एंड हम इतना कंसर्न रहते हैं हार्ट, लंग्स, हम कभी डू यू बेयरली थिंक अबाउट लिवर? क्या आप सोचते हो कि आपका लिवर ठीक है या नहीं? स्टॉप टेकिंग अल्कोहल, स्टॉप टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, स्टॉप टेकिंग एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉसेस खाना बंद करिए, दीज आर ऑल अफेक्टिंग लिवर इन नेगेटिव वे, राइट? सो अब मैं आपको एक ऐसी पावर बताने वाली हूँ लिवर की, रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? मीन्स यू आर जनरेटिंग एनीथिंग अगेन, ठीक है। सो रीजनरेशन पावर होती है लिवर में। अगर 50% ऑफ योर लिवर हैज़ बीन डैमेज, डैमेज क्यों होता है? फाइटिंग में यार, इट इज़ फाइटिंग कॉन्स्टेंटली। तो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल से। सो लिवर सेल्स डैमेज होती हैं, किल होते जाती हैं, इट डाइज, ओके। सो नंबर ऑफ सेल्स लगातार फाइट करते जा रहे हैं, तो एक स्टेज आती है कि वो सेल्स अपनी पावर खो देते हैं रीजनरेशन की, तो देयर विल बी अ लिमिट ना। सो दैट्स वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर लिवर, ठीक है। अब ये रीजनरेशन पावर होती है कि अगर हाफ ऑफ योर लिवर हैज़ बीन डैमेज, सो ये दोबारा इसकी सेल्स में पावर होती है कि अपना नंबर एंड साइज इंक्रीज करके दे कैन मेक योर लिवर टू कम बैक इन इट्स शेप अगैन। तो दिस इज साइंटिफिकली इसका टर्म होता है कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेसिया। रीजनरेशन इज नॉट द रियल एक्यूरेट टर्म, बट वी यूज इट जनरली। सो प्लीज़ अपने लिवर का ध्यान रखिए। stop taking bad things bad things, Chinese food, carbonated drinks, alcohol, and various toxins we are ingesting daily. So this is all about for today. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Please subscribe my channel, please share it, and if you are having any doubts, please post your comments. Okay, thank you, bye bye.